السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے اب میری؟ آپ کو آواز آ رہی ہے اب میری؟ انٹرپشن ہو گئی تھی دوبارہ سے، میں آن لائن ہوا ہوں پچھلے 20 منٹ سے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے بچوں؟ تو وہاں پہ مجھے بچے کہتے ہیں سر آپ نے 10 دن میں پورا تقریباً بتا دیا، بچے مسئلہ اتنے جڑ گئے تو ہمیں جو ہے وہ اپنی کلاس میں چاہیے شکارا کہ جو ہے وہ ہم پہلا سے بچے کے ماحول۔ اچھا ایک دوسری چیز یہ کہ سینس آف کمپٹیشن اگر ڈیولپ ہونا بچوں میں تو سینس آف فیلنگ ڈیولپ اگر ہوگی تو پھر سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ ہوگی، تو سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ ہو جائے تو آپ کی کلاس کے آس پاس بورڈ کا بھی بچہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کی کلاس کے اندر فیلنگس ریلیشن والی کمپٹیشن والی سیکھنے والی ڈیولپ نہ ہو سکے تو پھر آپ پٹ جاتے ہو، کلاس میں پٹ جاتے ہو، ادارے میں پٹ جاتے ہو۔ اب مجھے الحمدللہ یہ یقین ہے کہ میری کلاس کو کوئی بھی بندہ پڑھائے گا تو اس میں میرے سبجیکٹ کی وجہ سے نہیں، میرے نالج کی وجہ سے نہیں،
میرے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, میرے انویشن کی وجہ سے میں وہاں پہ سے کھڑے بندے کو تین اردو کے بڑے گرو ٹیچر ہیں جن کو کلاس کی کلاس جن کی چھوٹی کلاس میں کلاس بڑے نام ہوتے ہیں. تو میں نے جب مجھے وہاں جانے کا موقع ملا تو میں نے پڑھایا سینس آف فیلنگ, سینس آف کمپٹیشن, اور یہ سخاوت والی بات جو چل رہی ہے کہ کیسے دوسرے پہ انویسٹ کرنا ہے, نالج کیسے انویسٹ کرنا ہے, ٹائم کیسے انویسٹ کرنا ہے, توجہ کیسے انویسٹ کرنی ہے, خلوص اور محبت کیسے انویسٹ کرنی ہے. تو یہ آٹومیٹکلی ریٹرن تو آپ کو ہوگا, لیکن آپ کی شخصیت سے کتنی گرو ہوگی یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. لیکن جب ہو جاتی ہے, ابھی چند پہلے کی بات ہے, سر کا بڑا لاڈلا میری بات میں, اس کی والدہ کا مجھے ڈھونڈنا ہے, میں سر سے بات ہی نہیں, اس کی والدہ احمد پر ایسے بھی اس کی والدہ مجھے بیسٹ کر کے کہتی ہے, لیکن ملا بھی کبھی کہ سر بچہ آپ کا اس طرح بہن ہو گیا کہ سب سے بیسٹ نہیں کہیں میں 3000 روپے کی سب یہ دیکھیے اسے سب سے بیسٹ میں نہیں دے سکتے, یہ والا اس میں یہ والا اس میں یہ والا میں نے کہا بیٹا بچی میری آپ سے ملاقات تھی, میں کو جانتا نہیں, آپ سب سے بریک بال کر دیں. نہیں سر بچہ آپ کا اس طرح بہن ہے کہ آپ ایک بار جو ہے سب سے کہیں گے تو بچے کی خوشی ہو جائے گی, مجھے بھی خوشی ہوگی, ماننے نہ مانے غلط ہے, لیکن آپ ہمارے بات کریں تو رات 2 دن پہلے بھی 2 بار صحیح بات ہوتی ہے, ان کی 2 بار بات کہنے کا مطلب یہ کہ سینس آف فیلنگ, سینس آف کمپٹیشن. اچھا سو یہاں پہ نا میں نے سب سے پہلے بیمار کی کلاس رکھی, بتا دیں ذرا سپر سیکشن ٹائپ جو ہے نا اور ٹریننگ سیکشن کا جو ہے مجھے اور وہ ہوا. اب وہ وہاں پہ میں نے یہی بات کی تھی, میں نے کہا بیٹے اگر جیون اور بیمار میں سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ ہو جائے نا, جو پچھلے سال شاید نہیں ہو سکا, اگر یہ سینس آف کمپٹیشن جیون اور جیون میں ڈیولپ ہو جائے تو اپنے ہی دیگر ادارے نہیں بلکہ کوئی بورڈ میں سے کوئی بھی آپ کو بیٹ نہیں کر سکے, کیونکہ ایک ہزار 50 والے بچے ہمارے پاس بیٹھے نہیں, 40 والے, لیکن جب سینس آف کمپٹیشن, سینس آف فیلنگ, سینس آف کوآپریشن ہی ڈیولپ نہیں ہوگا تو پھر ایک نقطہ تو یہ ہوگا جس پہ میں نے بات کرنے کی. دوسرا میں نام سے مطلب یہاں پہ اس لیے بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا تو مجھے اندر وہ کچھ دیکھ لیا مجھے پتا تھا, میں نے نہیں بتایا. وہ مسجد میں جس آپ نے خیال کیا تھا نا اور وہ نبی کی طرف نے وہ سارا رجسٹر دکھایا, اٹھا کے پانی لے گئے, صحابہ نے کہا کہتے ہیں, اور جب وہ بندہ پانی چلا گیا مگر ذات کر کے جب اسے پتہ چلا کہ لڑنے کے فوراً واپس آیا کہ امام پڑھا ہو گیا. یہ واقعہ اس طرح میں پڑھا نہیں ہے, دو کاروں میں اور حضرت بھی بیٹھ کر. اچھا تیسری بات یہ کہ نبی مکہ کی دوسری امیر کی عورت کی حضرت پیدا, دوسری پہلی عورت کا نام سرید تھا یا غریب تھا, اس کا نام تھا ایک سینچری پر, دوسری مالدہ بن مخدوم کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آئی تو سارا اسباب پہلا تو نکاح بڑا عجیب ہوا, مطلب تاریخ آج تک حیران ہے عرب کی ہو کیسے گیا کہ عرب میں کبھی بھی کوئی عورت کسی مرد کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجتی تھی, کیونکہ عورت کو قوم کی ڈیوٹی سمجھا جاتا تھا. خدیجہ کے لیے بہت سے کینڈیڈیٹ تھے, ایون کہ عمر بن ہشام جو حضرت تھا اس نے خود پیغام بھیجا تھا کہ بھئی میرا اس طرح میں نے نکاح کیا, لیکن خدیجہ 40 سال کی ہیں, رسول اللہ 24 سال کے ہیں, تو 40 سال کی عورت 24 سال کے بندے کو پیغام بھیج رہی ہے نکاح کا, اور اب کی ہسٹری حیران ہے کہ وہ کیسے گیا, اور پھر نکاح ہو بھی گیا. تو اس کے بعد مکہ کی دوسری امیر دن خاتون سارا جب پیسہ حضور کے پاس پہنچا تو ایک دن ہمیں نہیں نظر آتا کہ جو بظاہر واقعہ تھا کہ پیسہ گیا خرچ کیسے ہو, ایک دن بھی نہیں لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسباب تھے وہ ماحول اس طرح جو ہے کنزیوم کیے, تاریخ میں ایک دن کا ڈیلے نہیں ملتا, رسول اللہ نے سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر دیا, مطلب اللہ کے نام میں جو ہے باقی کچھ بھی کرنا. پھر تیسرا نقطہ سن لیں, جو نتیجے میں آپ کو نیا ہوگا مسیحی کی طرف رہتا ہے. بچے آپ کہاں ہیں, واپس آ جائیں, آپ کدھر ہیں بچے؟ لیٹ می کنٹینیو مائی لیکچر. اگر آپ کو ابھی انٹرپشن ہے تو میرا تو چل رہا ہے, دوبارہ سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں, اپنا ریڈنگ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد آپ اس کو جیسے بھی یوٹیوب وغیرہ پہ جب اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ویسے میں آپ کو اس کے اسکرین شاٹس بھی
कंटिन्यूसली इसको देख रहा हूँ। मेरे पास अब स्टूडेंट्स पहले तो 22-25 शो हो रहे थे, अब 4 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं ऊपर मेरे पास सिर्फ। अब इसको फिर बाद में बच्चे देख लीजिएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान आलमी इस्लाम के मरकज़ में वाक़या है, मैंने ये बात कर ली थी। इसके मशरक़ में बांग्लादेश है जो पाकिस्तान का पहले हिस्सा रह चुका है, मलाइशिया और इंडोनेशिया के इस्लामी ममालिक हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ इनकी सरहदें तो मुंसलिक नहीं है, लेकिन ये बहुत करीब करीब ममालिक हैं जो इस्लामी दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से हैं। मलाइशिया है, इस्लामी दुनिया में मेले है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है कि इस्लामी ममालिक है। जबकि मगरब में, अब मगरब की तरफ आ जाए, ईस्ट और वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान और ईरान से शुरू होकर इस्लामी ममालिक का दूसरा सिलसिला जो है मगरबी एशिया और अफ्रीका से होता हुआ बहरे ओकियानूस के मशरकी साहिल तक जाकर खत्म हो जाए। पाकिस्तान का शुमार इस्लामी दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। तरक्की याफ्ता तरीन जो ममालिक है पूरी इस्लामी दुनिया के, उनमें से एक पाकिस्तान है। बाकी अभी बहुत सारे ममालिक जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, अभी डेवलप नहीं हुए, तो पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और इसको बैनुल इस्लामी ममालिक कल्ब की हैसियत हासिल है, एक दिल की हैसियत हासिल है। हमारे मुल्क ने दुनिया के सब मुसलमानों के मामलात में हमेशा गहरी दिलचस्पी ली है। पाकिस्तान के सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा इस्लामी कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। इस्लामी ममालिक की एक इदारा है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उनके सेक्रेटरी जनरल के भी रह चुके शरीफुद्दीन, ठीक है, पाकिस्तान के ही वो चले हम वापस आ गए हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इंटरप्शन हो रही है बार बार, मुझे नहीं समझ आती मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
میں سے حوالے سے پاکستان کے جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے، تیسری بات ہے جو میں نے شروع میں آپ کو جتنے پوائنٹس یہ بتائے تھے نا کہ ٹریڈ کی حوالے سے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے، اور اسلامی دنیا سے بھی ہے ہونے کے حوالے سے، اور تیسری بات ہے بڑی طاقتوں سے ہمسائیگی ہے کہ پاکستان کے ارد گرد دنیا کی جو اس وقت نمودار ہو رہی ہیں طاقتیں، وہ آج بھی پاکستان کی ہمسائیگی میں ہیں، پاکستان ان کی ہمسائیگی میں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے سرحدی شمال کی طرف سے چین سے جا کے ملتی ہے، شمالی ناردرن ایریاز میں چین پہ جا کے شہر ریشم جو ہے اس کی یہ مثال ہے، ریشم دونوں ممالک کے درمیان دوستی جنگ آنکر کی بہترین مثال رہی ہے ہمیں، پاکستان اور چین کو ملاتی ہے، سرحد کو ملاتی ہے، یہ تجارتی اور فوجی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، تجارتی اور فوجی لحاظ سے بھی شاہراہ ریشم جو ہے۔ جی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان بھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے وہ بھی موجود ہے، بادشاہ اس ملک کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو اہم جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے 1965 اور 71 کی جنگ کی وجہ کو 1971 میں جو ہوا ہونا پڑا۔ کشمیر کا سلسلہ مسئلہ بھی ابھی تک بھارت کی ہر درمی کی وجہ سے حل نہیں ہو سکا کہ وہ پاکستان کا حصہ آنا چاہیے، پاکستان میں اس ریاست کو شامل ہو جانا چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کی ہمسائیگی یہ ایک ٹاپک ہے، نیا پوائنٹ ہے، اگر کوئی بچہ میری بات وہ سامنے لکھ دے، بڑی طاقتوں کی ہمسائیگی، شمال کی طرف چین ہے اور مشرق میں بھارت ہے۔ جی اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ ہے 1948 کی جنگ کوئی نہیں ہے پاکستان بھارت کی، یہ صرف چند ریاستوں کے وہ غصب کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے 1948 میں، ان پر قبضہ کیا تھا جو پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی ریاستیں، لیکن وہ بھارت نے ان میں اپنی فوج کشی کی اور ان کو اپنا قبضہ جما لیا، یہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ چین ہے، اور چین کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمالیہ پہاڑی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ فلک بوس چوٹیاں کہا جاتا ہے، فلک بوس کہ آسمانوں کو چھوتی ہوئی اتنی اونچی چوٹیاں موجود ہیں پاکستان کے شمال میں، تو سے جو اس راستے سے کسی کو پہاڑی علاقے میں کئی درے واقع ہیں جس سے گزر کر ماضی میں کئی فاتح برِ صغیر میں حملہ ور ہوئے، اس لحاظ سے پاکستان برِ صغیر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے برِ صغیر میں؟ برِ صغیر مطلب پاکستان میں نہیں، برِ صغیر مطلب ہے کہ ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اور نیپال، یہ سارے جتنے بھی اس برِ صغیر کے اندر جتنے ممالک ریاستیں آزاد ہو گئی وہ تمام کے لیے جو ہے نا یہ پاکستان کا جو علاقہ ہے ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے مغرب کی طرف سے، جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں اور کئی دریں واقع ہیں۔ درہ خیبر پختونخوا اسی سے ہی ہے، ایک دروازہ جہاں سے فاتحین داخل ہوئے یہاں پہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اس برِ صغیر میں، ماضی میں جو فاتح یہاں پہ آتے رہے۔ بچے پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا 1948 کی جو معاملہ دو طرح کے تہذیبیں، دو طرح کے اس لوگوں کا
اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. دونوں کے جو تہذیب و تمدن ہے جی دیہی اور شہری علاقوں کے ایک زرعی ملک ہے جہاں پہ یہاں کی پیداوار جو ہے زراعت پر ہے. پاکستان کی جو معیشت کا دار و مدار ہے اس میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ دیہاتی اور شہری زندگی جو علاقے ہیں پاکستان کے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جغرافیائی لحاظ سے شہری علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں جن کا انتظامی نظم و نسق خاص اداروں کے تحت چلایا جاتا ہے. شہری علاقے وہ ہیں نظم و نسق چلایا جاتا ہے اداروں کے تحت, جیسے کہ کمیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, کنٹونمنٹ بورڈز وغیرہ. یہ ہم اکثر بھی روڈوں میں بھی چلیں تو ٹینکرز وغیرہ پہ یہ ساری چیزیں, میونسپل کارپوریشن, MCL وغیرہ, میونسپل کمیٹی اور کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت یہ نظامات سارے جہاں شہری علاقوں میں چلائے جاتے ہیں. جو چلتے ہیں, جو انتظامات جو چلائے جاتے ہیں ان اداروں کے
मुझे लगता है फिर इंटरप्शन हो गई है, हम फिर चले गए वापस घाटी किसी में। बड़ी टेंशन होती है बच्ची, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है जब ये कनेक्शन लॉस हो जाता है और मेरा जो रिदम बना होता है, अभी मैं 2-4 लाइनें बोलता हूँ तो फिर से वही इंटरप्शन आ जाती है। क्या कैसे फिर इस तरह से मुकम्मल हमारा लेक्चर हो, कैसे फिर किस तरह से मेरा वो अंदाज भी नहीं रहता, वो बयान नहीं रहता। ऐसे जैसे अकल पे दिमाग पर्दा आ गया हो जैसे, बिल्कुल ही। चले जो भी है जैसा भी है, अब कोशिश करते हैं हम अल्लाह हिदायत दे इस शैतान को कि जो हमारे दरमियान में हायल हो जाता है, रुकावट पैदा करता है। शैतान साहिब को फ़ोन करें, उनको कहें कि जनाब हम आज इस्लामियात नहीं पढ़े, हम आज मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी बातें वो भी, जो बुरी बातें हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तुम्हारी भी तारीफ हो रही है साथ साथ कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे निज़ाम इस्लाम नाफज नहीं हो पा रहा, तुम्हारी भी तारीफ की जा रही है। तो बराए मेहरबानी इंटरप्शन ना करें। शैतान साहिब बाज आ जाएं, और अगर आप भी थोड़ा बहुत सुन लें। इस्लामियात नहीं है आज तो मुताला पाकिस्तान कर रहे हैं और तुम्हारी भी तारीफ हो रही, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान का एक हिस्सा हो, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का हिस्सा हो, पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा हो, पाकिस्तान के हर इंतजामी अमूर का हर हिस्सा मौजूद हो, जगह जगह मौजूद हो, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हो। जहाँ तुम मौजूद नहीं हो वहाँ पे तुम्हारे साए मौजूद हैं। शैतान साहिब बनाए मेहरबानी ना आए हमारे आज लेक्चर के दरमियान में और इंटरप्शन ना पैदा करें। उम्मीद है अब शैतान जो है ना वो इंटरप्शन पैदा नहीं करेगा। हम मजीद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का हमने वकू कर लिया है, हमने जोग्राफी अहमियत कर ली। आपको मैं इसकी पिक्चर जो ना सेंड कर दूंगा, जो मेरे पास नोट्स हैं, जो बुक से कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका अर्ज़े पाकिस्तान का। अच्छा, आपकी बुक्स में भी तो लिखा हुआ है ना, तो कुछ आप उसमें से भी हेडिंग्स जो है ना वो शो करते हैं। अगर हमारी क्लास मतलब फिजिकल होती तो उस आपकी जो आपके पास जिसके पास जो किताब मौजूद है हम उससे ज़रूर रहनुमाई लेते। तो फिर मैं मुश्तरका साहब की किताबों से, जैसे मतलब मेरी रूटीन है, मैं एक किताब से कंसल्ट नहीं करता, बहुत सारी किताबों से कंसल्ट कर उससे नोट्स बनाता हूँ और फिर आपको सब एक मुश्तरक चीज़ के बारे में फिर आपको एक लेक्चर देता हूँ सबके मुतल्लिक। तो आपके पास जो हैं अर्ज़े पाकिस्तान के हवाले से जो नोट्स आपके पास हैं, जो हेडिंग्स हैं, आप वो भी शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में शेयर कर दें तो भी ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे अच्छी डिस्कशन हो जाएगी। और अर्ज़े पाकिस्तान के हवाले से जो मैंने आपको पॉइंट्स करवाए वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, जो आपकी किताबों में है वो भी आप शेयर कर लीजिएगा। चले जी, अल्लाह ताला से शैतान की पनाह मांगते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मुतालिया पाकिस्तानी आज मुकम्मल 12:15 हो चुके हैं। अब मज़ीद अब मैं इस्लामियात का लेक्चर जो है टॉपिक आज वो नहीं करता, हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस्लामियात भी कर लेंगे। आज मेरे पास जो टॉपिक थोड़ा सा है हम उसको देखते हैं। ज़रूरी है, पेपर में आ सकता है इस हवाले से भी सवाल, ज़राअत के हवाले से। ज़राअत की अहमियत क्या है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ट्रेड में, पाकिस्तान की माशी तरक्की में ज़राअत की क्या अहमियत है, इस हवाले से सवाल आ जाता है। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक है, आप मेन हेडिंग देंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है ज़राअत। ज़राअत, ज़े रे अलिफ आइन ते, ज़राअत, ज़राअत ज़रई पैदावार। ठीक है, ये हमें पता है कि पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और इस ज़राअत जो है पाकिस्तान की मईशत में कौन सी हड्डी की हैसियत रखती है? ज़राअत रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, आपको स्पाइनल कार्ड का भी पता ही होगा, स्पाइन जहाँ से सारी फिर पूरी बॉडी को वो मिलती है, करंट फराहम होता है, बॉडी फिर मूवमेंट करती है। तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत का जो जिस्म है उसमें, स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान के कुल आबादी जो है ना उसका 72% दोनों ही आते हैं। 71% भी मैंने पहले कहा 71% पे ही रहे, बेशक देहात से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और देहात पे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सबका जो पेशा है वो ज़राअत ही होता है, वो ज़रूरी पैदावार ही उनका पेशा होता है। तरह तरह की अजनास की पैदावार करते हैं, बिलवास्ता वो ज़राअत के साथ मुंसलिक होते हैं। उस ज़राअत के शोबे से ही हमें पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है मुख्तलिफ ज़राए से। ज़राअत किसान को रोज़गार मिलता है, उसके अलावा जब फसल तैयार होती है तो भी आप देखें कि कितने लोग फसल काटने पर और फसल काटने के बाद जो उसको नापा तोला जाता है उस पर, वहाँ से फिर वो उसके पास जाती है फसल, जितनी भी आपकी फसल जो काश्त होती है, कौन होता है वो बंदा जो सारे इकट्ठी करता है, उसने गोदाम बनाए होते हैं, उसके पास जाती है, वो लेता है, उनको रोजगार मिलता है। वहां से जब आटा लोगों को वहां परचून तक आता है, परचून से फिर हम तक आता है। ठीक है, तो ये कितने लोगों को ज़राअत के जरिए से रोजगार फराहम होते हैं पाकिस्तान के अंदर। ज़राअत बहुत अहमियत की हामिल है, फसलें जो है पाकिस्तान की। अच्छा जी, अब ज़राअत में क्या होता है, फसल हम कहते हैं कि जो बोई जाती है उसको फसल कहते हैं, जो 3 माह 4 माह या 5 माह या 6 माह तक की जो एक फसल होती है। पाकिस्तान में 2 तरह की फसलें हैं, काश्त की जाती हैं, उनको 2 तरह से नामों से याद किया जाता है। एक बरसात के मौसम के फौरन बाद अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है, उसको रबी की फसल कहते हैं। दूसरी अप्रैल मई से शुरू होती हैं, वो खरीफ की फसल होती है। पहले काट ली जाती है फसल, रबी की फसल जब काटती है अप्रैल में मई में, तो लोग दोबारा फिर फसल लगाते हैं, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। बरसात के मौसम के बाद जो होती है वो रबी की फसल है। उसके बाद जो अप्रैल मई में जून में जो लोग स्टार्ट करते हैं पिछली फसल का, रबी की फसल काश्त करके ये इसका बीज बोते हैं फसल खरीफ का। ठीक है, तो ये फिर जाके कब अक्टूबर नवंबर में जब ये रबी की फसल बोनी होती है तब ये फसल खरीफ काट ली जाती है, इसकी काश्त होती है, उसके बुवाई कर ली जाती है। अच्छा, अब एक बात तो ये तकसीम हो गई फसलों की। जी शाबाश अलीजा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी एक तो ये तकसीम हो गई फसल रबी और फसल खरीफ। फिर इसकी मजीद 2 इकसाम और की जाती हैं। जी हीरा जफर, आपने भी सही लिखा है। एक और तकसीम भी है फसलों की, वो ये है, एक है गजाई फसलें और दूसरी तकसीम इसकी है तजारती फसलें। गजाई फसलें और तजारती फसलें। गजाई फसलों में हम, आपको पता ही कौन कौन सी है, गंदम है, चावल है, चना वगैरह, दालें वगैरह जितनी है ये काश्त की जाती है, मकई वगैरह, ये सारी कौन सी गजाई फसलें हैं। वो कुछ तजारती फसलें भी होती हैं, जैसे कपास की फसल हो गई, ये तजारत की जाती है, गजा की नहीं है। फिर गन्ना काश्त होता है, तिजारत के लिए काश्त होता है, इसको ही ट्रेड करके मिलों में आता है, यहाँ से शुगर मिल्स इसको लेती हैं और इस पे काम करती हैं, इसको चीनी बनाती हैं गन्ना को। तंबाकू वगैरह की जो फसलें हैं ये सारी गजाई फसलें, तजारती फसलें। जी हीरा जफर, थैंक यू सो मच जी। और दूसरी फसल जो है
एक तकसीम रबी की फसल है। जब आपको ज़राअत का आ जाए ना सवाल, तो आप उसको लिखें, ज़राअत को देखें रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, असल है मैशियत में पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का जो आबादी का जो रकबा है 71% जो लोग हैं वो देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, और आलमोस्ट तमाम के तमाम जो हैं वो ज़राअत के साथ बिलवास्ता तौर पर मुंसलिक होते हैं। ये ज़राअत के बारे में 2-4 लाइन्स एक पैराग्राफ लिखने के बाद आप लिखेंगे फसलें। पहली जो इसकी वो मतलब आगे ये फसल जो पाकिस्तान में ज़राअत के को 2 फसलों में तकसीम तकसीम किया जाता है। 2 फसलें 2 तरह की। एक तकसीम ये है कि रबी की फसल है जो होती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में काश्त की जाती है और कटाई इसकी होती है अप्रैल मई में, और तब इसकी कटाई के बाद फसल खरीफ वो लिखेंगे आप। फिर एक किस्म और एक तकसीम और की जाती है फसलों की, वो है ग़िज़ाई फसलें और तजारती फसलें। ग़िज़ाई फसल आपको पता है चावल, गंदम जो हम खाते हैं, ये सारी चावल, मकई वगैरह, ये ग़िज़ाई फसलें हैं। और दूसरी जो है वो तजारती फसलें हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू वगैरह की फसलें। शुक्र है ज़राअत हमने इतनी कर ली है। अच्छा, इसकी अहमियत कितनी है? ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा ज़राअत का। उसके बाद इसकी अहमियत कितनी है पाकिस्तान में मईशत, पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत की अहमियत हमें पता है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है इसको, ठीक है। क्या क्या इसके खुसूसियात हैं वो हम आगे ये पढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत और दही तरक्की की अहमियत। ज़राअत की अहमियत ही आप समझ लें, पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत की अहमियत ये अब हेडिंग देंगे आप। इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसकी अहमियत। अच्छा जी, पाकिस्तान में साल में 2 फसलें काश्त की जाती हैं, आपको जैसे मैंने बता दिया। और काश्त करने का मकसद, 2 फसलें काश्त करने का मकसद ये होता है कि फी एकड़ पैदावार का तनासब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। बजाय कि एक फसल साल की हो, साल में 2 फसल कर दी जाती, ताकि फी एकड़ पैदावार का तनासब जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस एतबार से मुल्क की मईशत में ज़राअत और दही तरक्की की अहमियत को वाज़ेह किया जा सकता है। मुझे अच्छा नकात जो हैं डिफरेंट, अब आगे पॉइंट्स लिखते जाएं। ज़राअत की अहमियत के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ग़िज़ा की फ़राहमी। ग़िज़ा की फ़राहमी, ज़रई शोबा पूरे मुल्क को ग़िज़ा फ़राहम करता है। ज़रई शोबा पूरे मुल्क को ग़िज़ा फ़राहम करता है। अगर ज़रई शोबा ना हो पाकिस्तान में, खुदा ना खास्ता, जैसे 1/3 इलाका जो है वो बंजर है, वहाँ पे बारिशों की भी कमी है और ज़मीन में काश्त करने के काबिल नहीं है ज़मीन, तो ग़िज़ा की फ़राहमी उन इलाकों के रहने वालों के लिए जो है वो ग़िज़ा की फ़राहमी जो है ना वो मुयस्सर नहीं है उनको। तो ये भी एक मतलब पूरे मुल्क को जो ग़िज़ा फ़राहम की जाती है ज़रई शोबे से। अगर हम दूसरी वहाँ पे सनतें लगा लेते हैं दूसरा, और किसी और ज़राए से हम कोशिश करें कि ज़राअत आए ग़िज़ा वहाँ पे, तो बग़ैर ज़रई शोबे के इतनी अहमियत है ज़राअत की कि ग़िज़ा की जो फ़राहमी है पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में, वो ज़राअत के ज़रिए से ही है, किसी और ज़रिए से नहीं हो सकती। ज़रई शोबे से ही ग़िज़ा की फ़राहमी होती है। अगर ज़राअत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार न हो तो फिर ज़रई अजनास दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ती हैं। जैसे हम टमाटर बाहर से लेते हैं, हम अदरक बाहर से ले रहे हैं, इधर से आता है, अदरक चाइना से आता है और श्रीलंका से आता है अदरक जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अगर यहीं पे हमारी मईशत इतनी, इसकी ज़राअत इतनी ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए तो हम बाहर से परचेज़ ही ना करें। इस तरह की और भी कई फसलें हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में।
अच्छा जी, फिर दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है, पहला है ग़िज़ा की फराहमी, दूसरा खाम माल। पाकिस्तान में जो सनतें जो चल रही हैं उनमें खाम माल जाता है, फिर वो माल को तैयार करके मार्केट में लेकर आते हैं। तो खाम माल भी कौन दे रहा है इन सनतों को? अगर सनतों का भी हम जायज़ा लें तो सनतों का इन्हिसार भी, पाकिस्तान की सनतों का इन्हिसार भी जो है वो भी ज़राअत पर ही है। सनतों के लिए खाम माल ज़री शोबे से ही हासिल होता है। अगर खाम माल अपने मुल्क से मैसर ना आए तो फिर इसे दूसरे ममालिक से महंगे दामों पर दरामद करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी बात जो है हम पहले भी कर चुके हैं, ज़राअत के शोबे से मुंसलिक रोज़गार। तीसरा है रोज़गार। रोज़गार ये भी अहमियत है ज़रूरी शोबे की। पाकिस्तान में ग़िज़ा की फराहमी होती है, खाम माल सनतों को मिलता है और अवाम की कसरत को रोज़गार मिलता है। ज़रूरी शोबा जो है मुल्क की अक्सरियत को रोज़गार फराहम करने का आम ज़रिया है, सबसे आम ज़रिया। अक्सर कसरत को, अवाम की कसरत को रोज़गार फराहम करने का आम ज़रिया है। 71% लोगों का दारोमदार माशी एतबार से ज़राअत पर ही है, जो हम पहले बात कर चुके हैं रोज़गार। अगला पॉइंट देखते हैं जी, वो है ज़र्रे मुबादिला। ज़र्रे मुबादिला, शुक्र है अल्लाह का 24 बच्चे दोबारा मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं वैसे आज कह चुका था, इरादा कर लिया था कि आज सिर्फ ये टॉपिक ही करेंगे। मैं आज की जो बात है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो स्पीच ऑफ फ्राइडे आज मुमकिन नहीं थी, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था। लेकिन अब दोबारा बच्चों का जोश वलफला मैं देख रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आज की स्पीच ज़रूर मैं करूँगा आखिरी 5-7 मिनट में इंशाल्लाह, अगर आप चाहेंगे तो। अगला पॉइंट करें जी, ज़र मुबादला। सना कबल ने लिख दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ज़र मुबादला का हसूल, ज़र मुबादला का हसूल लिखें पूरा, ज़र मुबादला का हसूल। ज़र मुबादला का एक अहम ज़रिया है कि हम ज़र मुबादला, ज़र कहते हैं दौलत को, मुबादला तब कहते हैं अब चीज़ों का मुबादला, तब्दील। चीज़ों से हम तब्दीली से जो हमें दौलत हासिल होती है कि जैसे कि हमें माशरे में हम देखते हैं ना कि लेन देन किया जाता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रद्द बदल किया जाता है। तो ये तो मुबादिला है ना, उससे जो ज़र हासिल होता है ये भी हमें हासिल हो रहा है ज़राअत की से ही। किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, अब गांव में अगर आप चले जाएं, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उसको थोड़े से को गंदम दे देता है, एक तोड़ा गंदम का दे दिया, बोरी एक दे दी, तो उससे उसके इवज़ पैसे ले लेता है इंसान, या कोई और कोई खिदमत ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, ज़र मुबादला, दौलत को कहते हैं ज़र मुबादला का हसूल जो है, ये भी ज़राअत के बदौलत ही हमें पाकिस्तान को मैसर है, ज़र मुबादला का हसूल। पांचवा है सनअती तरक्की। हम ऊपर खाम माल की जब बात की थी ना, तो उसमें हम ये भी पॉइंट कर चुके थे कि सनतों को खाम माल इधर से होता है। अब सनत की जो तरक्की है, एक नया पॉइंट इसी से रिलेटेड ही है कि ज़राअत की वजह से, ज़राअत की बदौलत इतनी अहम ज़राअत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मुल्कों के लिए, कि सनत की तरक्की भी इससे पर मुनहसर है। खाम माल भी सनत को इधर से मिलता है और सनत को आगे जो तरक्की है वो भी ज़राअत से ही है। अगर ज़राअत को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मशीनी काश्त वगैरह का इत्माम किया जाए, ज़राअत को अगर हम ये चाहते हैं कि जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया जाए और मशीनी आलात वगैरह से काश्त की जाए, तो इससे क्या होगा, सनत ऐसी ऐसी मशीनरी पैदा करेंगे, बनाएंगी कि जिससे काश्तकारी में फी एकड़ जो पैदावार है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके मशीनों के ज़रिए से। और दूसरी एक तरफ तो मशीनें ये काम करती हैं कि ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। दूसरा ये कि अफरादी कुव्वत भी कम खर्च होती है इन कामों में। पहले ज़माने में आप चले जाएं, ज़मीन को जब बीज बोना होता तो कैसे उसको वो बनाई जाती थी, उसको किया जाता था। तो आजकल ऐसे ऐसे आलात लगा दिए, वो ट्रैक्टर के पीछे वो लगाते हैं आलात, तो ज़मीन को वही उसके बीज के मुताबिक, काश्तकारी के मुताबिक उसको बनाते हैं ज़मीन को। ठीक है, और उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो पहले लोग ज़माने में अगर आप चले जाएं तो क्या करते थे लोग, उसको अपने हाथों से, ख़वातीन भी मर्द भी बिछाना बिछाना मिलकर उस फसल को काट रहे होते थे। ठीक है,
اور آج کے دور میں یہ کام بھی سارا جو ہے نا وہ مشین چلا دی جاتی ہے اور ساری وہ کٹائی کر دیتی ہے. جو کام وہ خواتین و مرد جو ہیں کئی دنوں میں کرتے تھے یہ کئی گھنٹوں میں کر کے مشینیں جو ہے نا، جس سے کیا ہوتا ہے صنعت کی ترقی ہوتی ہے، صنعتوں کو کام مل جاتا ہے ایک چیز بنانے کے لیے کہ اگر ایسی مشینری تیار کر لی جائے تو صنعتوں کو بھی ترقی ہوگی، زراعت کی بھی ترقی ساتھ ہوگی. اور جو افرادی قوت ادھر زراعت پہ استعمال ہوتی ہے نا، کاشتکاری پر، وہ ساری صنعتوں میں آ کے یہاں پہ کام کرے گی. صنعتوں میں آ کے نئی چیزیں جو پیداوار کی جاتی ہے صنعتوں میں، یہاں پہ افرادی قوت زیادہ ہو جائے گی صنعتوں کے اندر. تو اس سے کیا ہوگا، صنعتی ترقی زیادہ ہوگی. پہلے زراعت کا انٹروڈکشن، پھر اس کی فصلیں، پھر اس کی اہمیت اور خصوصیات. اہمیت کیا ہے؟ پہلی اہمیت یہ ہے، مریم آپ نے تو کمال ہی کر دیا، زندہ باد مریم، زندہ باد، شکریہ. پہلی اہمیت کیا ہے؟ غذا کی فراہمی. عوام کو جو غذا کی فراہمی زراعت کے علاوہ اور کسی ذرائع سے نہیں حاصل ہوتی، اس لیے زراعت اہم ہے. دوسری بات ہے، صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کیا جاتا ہے، زراعت اس لیے بھی اہم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ روزگار فراہم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اس لیے بھی زراعت اہم ہے. پھر زرع مبادلہ کا حصول ہوتا ہے کس سے؟ زراعت سے، اس لیے بھی زراعت اہم ہے. کس سے؟ زر حاصل ہوتا ہے، زرع مبادلہ حاصل ہوتا ہے. پھر پانچویں ہم نے بات کی تھی، صنعتی ترقی ملتی ہے صنعت کو بھی زراعت سے، اس لیے زراعت اہم ہے. اچھا جی، اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے، وہ ہے معاشی ترقی میں انقلاب. معیشت میں زراعت جو ہے نا ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے. معاشی ترقی میں انقلاب. زراعت سے نہ صرف صنعت بلکہ تجارت اور کاروبار بھی پھلتا پھولتا ہے. زراعت سے صنعت تو پھلتی ہی ہے. زراعت سے صنعت کے جہاں سے ہم نے کاشتکاری کی، جو گندم حاصل ہوئی، ایک مثال گندم کی لے لیں، کپاس کی لے لیں، کسی کی بھی، اس سے کپاس جا کے اس کو فیکٹریز وغیرہ میں جو اس کو روئی میں یا مختلف چیزوں میں بنایا جاتا ہے، یا گندم لے لیں، اس سے آٹا یا مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاشی ترقی میں کتنا انقلاب پیدا کرتی ہے زراعت. صرف ایک صنعت کے لیے، صنعتی اداروں کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ تجارت کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یہ زراعت اہمیت کا حامل ہے. اور کاروبار کرنے کے لیے بھی، لوگوں کا کتنے کاروبار ہیں. اب گاؤں میں دیکھیں، مجھے لفظ صحیح طرح پروناؤنسیشن نہیں ہے اس کی، آڑت کہتے ہیں شاید، آڑت ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس پر کاروبار کرتے ہیں، کسانوں سے لیتے ہیں سارا مال، جو فصل تیار ہوتی ہے لیتے ہیں، اور بس 6 بجے تھی، 6:30 سوا 6 رابطہ رہے گا فون پہ. مغل پورے 2:30 سے 3-4 رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مغل پورے تو تھوڑا جا کے. اچھا، وہاں پہ میں گاڑی لے آیا ہوں یا کیسے جائیں گے؟ بائک کے لیب سے لے لیں. ٹھیک ہے، میں رابطہ کر لوں گا. 6:15 بجے تک ادھر میں مگر پارک کے انشاءاللہ آ جاؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ. مغل پارک اکیڈمی آ جاؤ گے؟ نہیں، مغل پورے یا بائک کے پاس. مغل کو دیجیے کتنے بجے؟ 5:15 بجے. بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ 6 بجے ملتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، 6:80. اچھا، آپ ہی آئیں گے خدا سے. شکریہ جی. بالکل ثنا کا صحیح ہے. آڑت ایسا کچھ لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے کاروبار. یہ حضرات جو ہے نا وہ کسانوں سے وہ لیتے ہیں، جو بھی فصل کاشت ہوتی ہے، جیسے گندم ہی سمجھ لیں، تو اس کے بعد اس کو رکھ لیتے ہیں سستے داموں ان سے لے کر، ان کو فوری پیسے دے دیتے ہیں، کچھ دیر رکھ کے پھر آگے مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے. اور کچھ کسانوں کے پاس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فصل کاشت کر سکیں، بیج کے پیسے نہیں ہوتے، یا پھر اس کے اوپر جو سپرے وغیرہ یا جو کھادیں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں فی ایکڑ، انہوں نے کتنے، مطلب اس پہ بھی خاص بہت خرچہ آ جاتا ہے. اور پھر جو آج کل مطلب ڈیزل وغیرہ کا خرچہ، یہ سارا جس کی وجہ سے مشینری چلائی جاتی ہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے بعض وقت کسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اتنا. تو اس کے لیے بھی آڑت والے جو لوگ ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کو فصل بونے کے لیے پیسے دے جاتے ہیں، تاکہ فصل جب پک کے تیار ہوگی تو وہ ان کو پیسے لوٹا دیں گے. حالانکہ وہ اس پہ زائد بھی لیتے ہیں، سود کے زمرے میں بھی بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں.
तो इस तरह के भी कारोबार जो है ना माशी तरक्की में इनकलाब लेकर आता है ज़राअत, ना सिर्फ सनत में बल्कि तजारत में भी और कारोबार में भी। इससे कारोबार भी फलते फूलते हैं। इससे मुल्की मईशत में हकीकी इनकलाब रूनुमा होता है। एक ज़राअत से कितनी चीज़ें मईशत के कितने अंदाज बेहतर होते हैं मईशत के पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में। अच्छा जी, 7वां पॉइंट देखें, कर्जों से छुटकारा। कर्जों से छुटकारा, ये कर्जे वो नहीं है जो हम एक दूसरे से लेते हैं। कर्जों से छुटकारा ये है, अगर हम ज़राअत जब पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है इसको, तो अगर हम इस रीढ़ की हड्डी को इतना मजबूत कर लें, इसको इतनी ज़्यादा तरक्की दे दें, इतनी ज़्यादा पैदावार हम बना लें, बंजर इलाकों को भी हम ज़राअत के काबिल बना लें, ठीक है, और ऐसी मशीनरी हम ले आए, ऐसे बीज ले आए कि जो बहुत ज़्यादा पैदावार कर सकें। इस रीढ़ की हड्डी को अगर हम इतना मजबूत कर लें, ये ज़्यादा फले फूले, इतनी फले फूले के पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को बाहर से कर्जा लेना ही ना पड़े, कर्जों से छुटकारा हासिल हो जाए सबको, मुल्क की मईशत तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। ज़राअत की तरक्की से मुल्क की सनती तरक्की भी होगी, मुल्क की ट्रेड भी बेहतर होगी और बहुत सारे कारोबार जो है ना वो जो ज़राअत के साथ ही मुंसलिक होते हैं, सनतें भी, तिजारत भी, कारोबार भी, इन सब में तरक्की होगी। जब ज़राअत में तरक्की होगी तो क्या होगा, जब आपके पास तरक्की ज़्यादा होगी, मईशत बहुत ज़्यादा फले फूलेगी, ज़्यादा होगी, तो आपको कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी, कर्ज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अगला पॉइंट है, दरआमद और बरामद में तवाज़ुन आता है। ज़राअत की तरक्की से ज़राअत इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तवाज़ुन आता है। ज़रूरी पैदावार की दरामद और बरामद में तवाज़ुन, दरामद और बरामद में तवाज़ुन। अगला पॉइंट है, अगर हम ऑनलाइन हैं तो लिखें प्लीज़, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, दोबारा से इंटरप्शन नहीं होगी तो। दरामद और बरामद में तवाज़ुन, जो शुक्रिया आपका हीरा ज़फ़र, सना आपका भी। अच्छा जी, इससे क्या समझ में आता है, यही है कि जब हम ज़रूरी पैदावार की बरामद ज़्यादा कर लेंगे, बरामद होता है एक्सपोर्ट, बाहर भेजना, बरामद बाहर जो भेजा जाते हैं, जब हम अपने यहाँ की फसलें जो तैयार होती हैं, जब हम उनको बाहर भेजें तो उसके बदले में जो हमें ज़र मुबादला हासिल होगा, उसके बदले में जो हमें फ़ायदा हासिल, नफ़ा हासिल होगा मुल्क पाकिस्तान को, तो क्या होगा, उससे हम और चीज़ें खरीद सकते हैं जो इसकी हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है। जैसे कि हम दिफाई असला खरीद सकते हैं। अगर बरामद ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो उससे नफ़ा ज़्यादा हासिल होगा हमें, उस नफ़े से हम बहुत सारे जो दूसरे मामलात है वो हम तय कर सकते हैं। पाकिस्तान को दिफा की ज़रूरत है, दिफाई असला की ज़रूरत है, जैसे मिसाल के तौर पर, तो हम वो बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो इससे जो है ना वो दरामद और बरामद में तवाज़ुन बरकरार रहता है कि हमें बाहर से चीज़ मंगवानी है, तो अगर हम बाहर उतनी चीज़ें जितनी हम भिजवा रहे हैं, जितना नफ़ा उनसे हासिल होता है, तो जो हमने बाहर से मंगवानी है उतना ही हमें खर्चा अगर उन पे आ रहा है, तो इससे तवाज़ुन पैदा हो जाता है। ज़राअत वो एक चीज़ है कि जिससे हमारी सनती तरक्की होती है, दरामद बरामद बेहतर होती है, बरामद बेहतर होती है, बरामद एक्सपोर्ट अच्छी होती है ज़राअत के ज़रिया से। जब एक्सपोर्ट अच्छी होगी तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो जो अखराजात इंपोर्ट के ऊपर आते हैं वो उस एक्सपोर्ट की हुई चीज़ के साथ तवाज़ुन में आ जाते हैं। समझ आ गई बात की? ये थी अहमियत। अगला पॉइंट आप जल्दी से लिख लें, वो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी आसान है वो सारी। अगला है पाकिस्तान में ज़रई पसमानदगी के असबाब। पाकिस्तान में ज़रई पसमानदगी के असबाब। पाकिस्तान में ज़रई पसमानदगी के असबाब।
पाकिस्तान में ज़रई पसमानदगी के असबाब, असरात नहीं, सॉरी सना साहिबा, असबाब, पाकिस्तान में ज़रई पसमानदगी के असबाब। जी मरियम, आपका यहाँ फिर दोबारा से शुक्रिया, जिंदाबाद, आपने दोबारा से ये चीज़ें लिख दी। तमाम बच्चे जो है ना इनको नोट कर लीजिएगा, जिनके जो मिस होता है फिर वो उससे आसानी उनको होती है, ये लिख लीजिएगा। पाकिस्तान में ज़रई पसमानदगी के असबाब हैं सना साहिबा, बाकी भी असबाब लिखे, असरात नहीं। पसमानदगी के असबाब क्या हैं, क्या क्या सबब है जिस वजह से ज़राअत पसमानदगी के शक्ल में है? शुक्रिया सना असबाब करने का असरात से। चलें जी, ये रहा, शुक्रिया आपका भी। क्या कौन से, अगरचे पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी जरखेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोग भी बड़े मेहनती भी हैं, मगर इसके बावजूद हमारी ज़राअत पसमानदा है और फी एकड़ पैदावार दुनिया के ममालिक के मुकाबले में कम है। जो फी एकड़ पैदावार यहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर, वो दीगर ममालिक के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो कम है फी एकड़ पैदावार हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। लोग बहुत मेहनती हैं, ज़मीन बड़ी सरखेज है, लेकिन फिर भी पसमानदा क्यों है इस मामले में ज़राअत में हम? इसकी वजूहात जो है, जो असबाब हैं, जो वजूहात बदर्ज झैल हैं। नंबर 1, काश्तकारी के नाकुस तरीके। काश्तकारी के नाकुस तरीके, जी काश्तकारी के नाकुस तरीके। क्या है कि किसानों के माली वसाइल महदूद होने की वजह से, उनके पास ज़्यादा माली वसाइल नहीं है, उन्हीं की वजह से वो ज़रई आलात खरीदने के सख्त नहीं रखते। जदीद ज़रई आलात जो हैं, जो मशीनरी आ चुकी है, किसान जो हमारे कसरत जो किसानों की है, वो उनके पास इतना पैसा नहीं है, माली वसाइल नहीं है कि वो नए ज़रई आलात खरीद सकें। तो क्या है, वो पुराने आलात काश्तकारी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसलिए जो एक सबब है काश्तकारी के नाकुस तरीके, जो पुराना जदीद तरीके अगर हमें फी एकड़ पैदावार दूसरे ममालिक ने ज़्यादा कर ली है जदीद मशीनरी इस्तेमाल करने से, तो हमारे किसान को तो एक तो तालीम भी नहीं दी गई, दूसरा कि उसके पास इतने माली वसाइल नहीं है कि वो जदीद मशीनरी खरीद सके जिससे फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सके। तो वो क्या करता है, किसान माली वसाइल ना होने की वजह से वो मशीनरी जदीद आलात नहीं खरीद पाता, तो वो पुराने जो तरीके हैं काश्तकारी के उन्हीं को अपनाए हुए हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में ज़राअत पसमानदा है। नाकुस तरीके, वो पुराने तरीके इस्तेमाल करने पर इस किसान मजबूर है। अगला जो पॉइंट है वो गैर मुआशी कताआत। ठीक है, हमारे यहाँ बाज़ कताआत अराज़ी इतने छोटे हैं कि इन पर मशीनी तरीके से काश्तकारी नहीं हो सकती। गैर मुआशी कताआत, कताअत ज़मीन का टुकड़ा कहा जाता है जिसको। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसान की ज़मीन मुख्तलिफ मकामात पर बिखरी होती है, किसी के कुछ एकड़ ज़मीन इधर है, कुछ एकड़ बाकी किसी और मुकाम पर है। अगर कच्ची ज़मीन हो तो वो, और बहुत वसी पैमाने पर हो, तो उसको भी मशीनरी जो है ना, वो 1 एकड़ के लिए तो लाकर या 8-10 एकड़ के लिए लाकर तो नहीं वो इस्तेमाल की जाती, उसके आने जाने का जो एक्सपेंसेस आते हैं, फिर उसका जो अखराजात आते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर जगह ज़्यादा हो, आपके पास कई मतलब एकड़ हो, बहुत ज़्यादा जगह हो, वसी तादाद में हो एकड़ में जगह, तो क्या होगा, उस पर आप मशीनरी भी आसानी से चला सकते हैं। तो इसलिए ये गैर मुआशी कताआत इनको कहा जाता है, जो छोटे छोटे ज़मीनी के टुकड़े जहाँ पे किसान काश्तकारी करता है। छोटे छोटे ज़मीनी ये टुकड़े हैं जहाँ पे किसान, इनको गैर मुआशी कताआत कहा जाता है। फिर ज़मीन गैर मुआशी कताआत लिख लिया है, शायद लिख लिया हुआ आपने। जी, आपने जिस किताब से लिखा है बच्चे, ये बिल्कुल ऐसा ही है।
आपकी किताबों में भी होगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट जो बता रहा हूँ, अगर आप में के पास ये ना हो तो आप मजीद चाहे वो किताब के ऊपर ही लेड पेंसिल से पेन से आप ये भी 7 पॉइंट लिख लें, तो ये होता है कि फिर जब पेपर में सवाल आ जाता है तो कुछ 4-5 आपको 8-10 याद होते हैं, तो 2-4 फिर भूल जाते हैं, तो जब आखिर पे जो लिखे हो ना एक्स्ट्रा जो बस ये भी ज़हन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर ज़मींदारी निज़ाम है हमारा। ज़मींदारी निज़ाम ज़्यादा पैदावार के असूल में बड़ी रुकावट है। ज़मींदारी का जो निज़ाम है, बड़े ज़मींदार अपनी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके मज़ारीन काज करने के लिए दे देते हैं और खुद गैर हाजिर रहते हैं और पैदावार बढ़ाने की में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार ही नहीं करते। ज़मींदार जो होता है, ज़मींदार होता है, एक किसान होता है, काश्तकार, उसको मज़ारा भी कहा जाता है, ज़मीन पर वो मेहनत मशक्कत करता है। तो ज़मींदार ने ज़मीन दे दी, ठेके पे दे दी उसको, या उजरत पे दे दी कि तुम इतनी मजदूरी करो, तुम्हें हम इतना पैसा दूंगा, तो वो साइड पे हो जाता है, सिर्फ ज़मीन ठेके पे दे देने से ज़मींदार जो है। ठीक, तो ये भी निज़ाम जो है ना पाकिस्तान में, ये भी एक वजह है पसमानदगी का, कि जो उसको दिलचस्पी नहीं है इसके ज़्यादा होने से, कि पैदावार ज़्यादा हो या कम हो, जो भी उसको सिर्फ ठेका आने से दिलचस्पी होती है कि मज़ारा जो है ना मुझे इसका ठेका 6 महीने बाद या फसल पकने के बाद मुझे मिल जाएगा, मुझे दे देगा। ये ज़मींदारी निज़ाम एक सबब है। अगला पॉइंट चौथा जो है वो आबादी का दबाव और सरमाए में कमी है। देहातों में जो पहले एक शख्स था, किसान था, उसकी बीवी थी और 3 बेटे थे, अब उसके तीनों बेटों ने शादी की, अब उस किसान के एक बीवी है, 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। फिर चंद साल गुजरते हैं, एक किसान वही है, उसकी बीवी भी वही है, 3 बेटे भी वही हैं, 3 बहुएं भी वही हैं और सबके एक एक 2-2 बच्चे हैं। तो इस तरह से आबादी का दबाव ज़्यादा होता जा रहा है। ज़मीनें उतनी हैं जितनी किसान के पास ऑलरेडी थी, ठीक है, उसमें इजाफा ना कर सका वो माली वसाइल ना होने की वजह से। तो फिर क्या होता है, एक किसान के पास जो ज़मीन होती है, आपको पता ही है, वो अगर 10 एकड़ ज़मीन थी तो वो तीनों में तकसीम हो जाएगी, फिर वो तीनों जो है जितनी 3-3 एकड़ हर एक के हिस्से में आती है, तो अपने बच्चों में वो तकसीम करेंगे तो वो ज़मीन 1-1 एकड़ भी रह जाती है हर एक के पास, बाद में वो भी कम रह जाती है। ठीक है, तो ये आबादी का दबाव और सरमाए की कमी है। मजीद काश्तकार जो है, ज़मींदार जो है सरमाया नहीं लगाता। आबादी का दबाव और सरमाए की कमी एक बहुत अहम बड़ी वजह है पाकिस्तान में ज़राअत के डेफिशिएंसी में जाने की। जी मैडम, हाँ जी, ऑनलाइन में चलिए जाए, मैं इसको वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको आवाज़ तो आ रही है ना स्टूडेंट्स? जी, आबादी का दबाव और सरमाए की कमी एक चीज़ आगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है जहालत। जहालत, काश्तकारों की अक्सरियत जो है नाख्वानदा है, पढ़ी लिखी नहीं है। समझ आ गई? बस इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। उससे अगला पॉइंट है सीम थोर। सीम थोर किसे कहते हैं? जमीन जो बंजर जो होती है ना, वो सीम थोर की बीमारी की वजह से बंजर हो जाती है। ट्यूबवेलों के जरिए से, पानी के जरिए से इस बीमारी को खत्म करने की बड़ी कोशिश करती है हुकूमत, लेकिन मगर इस खतरे का मुकाबला के लिए वसाइल हमारे पास बहुत कम है। सीम और थोर की जो ज़मीन की बीमारी होती है ना, जो कलर कभी देखें ना ज़मीन पर पड़ा होता है, कभी गांव में जाए ज़मीन मिट्टी के ऊपर कलर, वो सीम थोर की बीमारी पैदा करता है। ज़मीन पे पैदाइश फसल की सख्त नहीं रह जाती उस कलर की वजह से। ये भी एक वजह है पाकिस्तान में, सबब है पसमानदगी का ज़राअत का। फिर अगला है सैलाब। हाँ, बड़ी मेहनत की, कोशिश की, बीज लगाया किसान ने, और मगर उसको फलाह हासिल ना हो सकी, कामयाबी हासिल ना हो सकी। जब फसल पक गई तो बारिशों का ऐसा सिलसिला जारी हुआ और फिर दरिया और नहरें उभर आई, पानी के बाहर आ गई, जिनसे वो फसलें सैलाब होती थी। अब वो पानी इतना ऊपर आया कि वो फसलें तबाह भी हो गई उसी पानी से, पानी के सैलाब आ गए। ठीक है, सैलाब एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में जो हमारे पास जो काश्तकारी का पसमानदगी की वजह, ज़राअत के पसमानदगी का एक सैलाब है। बहुत ज़्यादा पानी, सैलाब भी एक वजह है और बहुत पानी की कमी भी एक वजह है। अगली वजह क्या है? पानी की कमी है। बहुत ज़्यादा पानी भी हो जाए, सैलाब आ जाए तो भी सबब है फसल तबाह होने का, ज़राअत की पसमानदगी का। और पानी की कमी भी, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नहरें नहीं पहुँचती और वहाँ पे लोगों को फिर ट्यूबवेल के ज़रिए से पानी, या बारिशों की कमी की वजह से जो पानी आना चाहिए था तो वो नहीं होता है, पानी की कमी की वजह से।
नहरी निज़ाम काफ़ी नहीं है पाकिस्तान का जो है, बहुत से इलाकों में मसलन सिंध, थल और सरता, मरतबा, पटवा जो बलोचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे तो पानी की आप देखें कितनी शदीद कमी है। अच्छा, वहाँ पे एक कोटा तो मैं कई दफ़ा मतलब गया भी हूँ, रास्ते में एक स्टेशन आता है, ट्रेन पे जाए ना तो एक रास्ते में स्टेशन आता है, उसका नाम है आबे गुम, पानी है ही नहीं वहाँ पे। ऐसा भी है, और बहुत सारे मतलब वहाँ पे जाके लोगों से पूछे रेगिस्तानों में कहाँ पानी पाया जाता है, पीने का पानी मुयसर नहीं है तो फसलों के लिए पानी कहाँ से हो। नमकीन पानी जो समुद्री पानी होता है अगर वो नीचे से वो करे तो वो नमकीन पानी आता है, वो तो फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मीठा पानी जो होता है वो साफ पानी शफाफ, वो फसलों के लिए बेहतर होता है। तो पानी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में ज़राअत पसमानदगी का शिकार है। नाक़िस बीज है यहाँ पे, अच्छे बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता यहाँ पे, हालांकि इससे अखराजात में मामूली इजाफा होता है। बीज भी नाक़िस इस्तेमाल किया जाता है, थोड़े से अखराजात की वजह से भी बर्दाश्त नहीं कर पाता किसान और नाक़िस बीज इस्तेमाल करता है। फिर बहुत सारी बीमारियां हैं, पौधों की बीमारियां। अगला है पौधों की बीमारियां। ज़रूरी पैदावार का बड़ा हिस्सा कीड़े मकोड़ों, परिंदों और बीमारियों की नज़र हो जाता है। कीड़े खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं फसलों को लग जाते हैं, और परिंदे भी उसको फसलों को तबाह बर्बाद करते। कोई बीमारियां ऐसी हैं पौधों की जिसकी वजह से ज़राअत पसमानदी का शिकार है। ज़रूरी मनसूबाबंदी की कमी है, प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं है पाकिस्तान में फसलों की काश के हवाले से। ठीक है कि पहली फसल अगर ये लगानी है तो दूसरी फसल हम, वो मैंने सुना था किसी से कि अगर एक भारी फसल लगाई है, कुछ फसलें भारी हैं, कुछ फसलें हल्की हैं काश्तकारी के हवाले से, ज़मीन की पैदाइश के हवाले से। कुछ बहुत भारी होती हैं ज़मीन पर फसल करने के लिए, कुछ हल्की हैं। तो कहते हैं कि अगर भारी फसल आपने लगाई है तो अगली फसल आपको हल्की लगानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हाँ, मुझे याद आ रहा है कि वो शख्स फरमा रहे थे कि अगर आपने गंदम लगाई, गंदम भी भारी फसल है, चावल भी भारी फसल है। गंदम के लगाने के आपने काश्तकारी की है, उसके बाद आप दोबारा गंदम ना लगाएं क्योंकि वो भारी दोबारा फिर भारी आएगी, और ना ही चावल उसके बाद लगाएं उस फसल पे क्योंकि वो भी भारी फसल है। हाँ, उसके बाद मकई लगा लेते हैं, मकई हल्की फसल है, या फिर वो लगाते हैं शायद कपास भी हल्की फसल है। तो ये जो मनसूबाबंदी की जाती है ना, ज़रूरी मनसूबाबंदी, इसकी भी कमी है हमारे बहुत सारे लोगों को, इस बारे में किसानों को नहीं पता। कमज़ोर जानवर भी काश्तकारी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, कमज़ोर जानवर भी ऊँट, बैल, भैंसे वगैरह, वो भी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनसे काम लेना चाहिए वो बराबर उनसे काम नहीं लिया जा सकता कमज़ोर होने की वजह से। फिर सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासत सही तरह से इन्वॉल्व नहीं है इस काश्तकारी को बढ़ाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए। सियासी अदम इस्तेहकाम है, और सियासत आए दिन बदलती रहती है, कभी कोई लीग आ गई, कभी कोई लीग आ गई पाकिस्तान में। अच्छा जी, मंडियों की भी में तंजीम नहीं है, गैर मुनज़्ज़म ज़रूरी मंडियाँ हैं। एक तरफ फी एकड़ पैदावार कम है, दूसरी तरफ ज़रूरी अजनास की फ़रोख्त का इंतज़ाम इंतहाई नाक़ुस है। मंडियों में जब ये काश्तकार लेके जाते हैं फसल को, तो आप देखते हैं कि कोई इसकी कोई कीमत लगा रहा होता है फसल की, कोई कुछ कीमत लगा रहा होता है, कोई आपस में इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट ने रेट भी दिया होता है लेकिन कोई अमल दरामद उस पे नहीं होता। कोशिश यही होती है खरीदार की मंडी में कि वो खरीद ना सके। बच्चे, आज की बात फिर सही अब वक्त हो गया, मैंने जुम्मा के लिए निकलना है। मुझे डर है कि मेरा जुम्मा रह ना जाए, मैंने दूर जाना है वहाँ पे जुम्मा अदा करने के लिए। फिर इंशाल्लाह ताला बात ज़रूर करूँगा। बहुत अच्छी बात थी, अगर मुझे याद रखिएगा, वो कुन और खलक की बात है। कुन लफ्ज़ कुन है और खलक की बात है, बस आप अपने ज़हन में ये रख लीजिएगा, लफ्ज़ कुन और खलक। मरियम, दोबारा से शुक्रिया, आपने सारी दोबारा से लिख दी हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर भी लिया हो, सुना हो, तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ लिखे में वक्त ना ज़ाया कर दिया हो, सिर्फ कर दिया हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जीते रहें, जागते रहें, ताबिंदा रहें, आबाद रहें।